How I Taught My Grandmother to Read, Sudhamurti. The narrator was a girl of 12 and lived in a village of North Karnataka with her grandparents. At that time, Triveni was very popular among people for her style and subject of her stories. In her novel Kashi Yatra, the heroine is an old lady who desires to go to Kashi to worship Lord Vishweshwara. The old lady gives away all her savings to an orphan girl because she has no money for her wedding. The old lady, the heroine of Kashi Yatra, considers the happiness of this orphan girl more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. The narrator's 62-year-old grandmother, Krishtaka, could not read. She would ask her granddaughter to read every episode of Kashi Yatra to her. The grandmother would discuss the latest episode of Kashi Yatra with her friends at the temple. Once the narrator went to a neighboring village for a wedding. She came back only after a week. When the narrator came back to her village, she was surprised to see her grandmother in tears. The grandmother narrated her story. She lost her mother at a very young age and her father got married again. The grandmother never went to school and at times used to regret it. She made sure that her children and grandchildren studied well. In the narrator's absence, the grandmother opened the magazine Karmavir but couldn't understand anything written here. She surprised her granddaughter by declaring that she had decided to learn the Kannada alphabet from the next day. She kept Saraswati Puja day during Dasra as the deadline. That day she should be able to read a novel on her own. Childishly, the narrator made fun of the old lady, but the grandmother just smiled. The next day onwards, the narrator started her tuition. The grandmother proved to be a wonderful student and did amazing amount of homework. On the Dasra festival day, the grandmother called her granddaughter to the puja place. She made her sit down on a stool. Then she did something quite unusual. She touched the feet of her granddaughter. The grandmother explained that she was touching the feet of a teacher, not of her granddaughter. The narrator gave a gift to her first student. It was a copy of Kashi Yatra. The grandmother opened the novel and read immediately the little Kashi Yatra by Triveni. She had passed with flying colors. त्रिवेणी का प्रसिद्ध उपन्यास काशी यात्री। कथा का लगभग 12 साल की एक कन्या थी। वह अपने दादा दादी के साथ उत्तरी कर्नाटक के गांव में रहती थी। उस समय कन्नड़ भाषा में त्रिवेणी एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हुआ करती थी। वह एक अद्भुत लेखिका थी। उसकी शैली पढ़ने में आसान और काफ़ी विश्वसनीय थी। उसकी कहानियाँ आम लोगों के जीवन की जटिल समस्याओं से निपटती थी। उसका एक उपन्यास काशी यात्रे कन्नड़ पत्रिका कर्मवीर के धारावाहिक के रूप में निकल रहा था। यह एक वृद्धा महिला की कहानी थी जो भगवान विश्वेश्वर की पूजा के लिए काशी जाना चाहती थी। कहानी में एक युवा अनाथ लड़की भी थी। वह शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे। अंत में बिना काशी गए वृद्धा अपने सारे बचाए हुए पैसे लड़की को दे देती है। उसने भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने की अपेक्षा उस अनाथ लड़की की खुशी को अधिक महत्वपूर्ण समझा। कथाकार की दादी कभी स्कूल नहीं गई, इसीलिए वह लिखना पढ़ना नहीं जानती थी। हर बुधवार को पत्रिका कर्मवीर आती थी। दादी अपनी 12 साल की पोती को उस कहानी का अगला धारावाहिक उसे पढ़कर सुनाने को कहती थी। वह बहुत ही ध्यान लगाकर उसे सुनती थी। उस समय के दौरान वह अपना सारा काम भूल जाती थी। बाद में वह सारे
मूल पाठ को कंठस्थ दोहरा देती थी। वह स्वयं को उपन्यास की नायिका के साथ जोड़ लेती थी। काशी यात्री का अगला धारावाहिक सुनकर वह अपनी सहेलियों से मंदिर में मिलती थी। वहाँ वह सबसे ताज़ा धारावाहिक पर अपनी सहेलियों के साथ बहस करती थी। एक बार कथाकार अपने चचेरे भाई बहनों के साथ पास के गांव में शादी में गई। वह एकाध दिन के लिए गई थी, लेकिन एक सप्ताह तक वहाँ ठहर गई। जब वह अपने गांव वापस आई, उसने अपनी दादी को दुखी पाया। वह हैरान हो गई। उसने कठिन से कठिन हालात में भी अपनी दादी को कभी रोते चीखते नहीं देखा। दादी ने अपनी पोती को अपनी कहानी सुनाई। जब वह बहुत ही कम आयु की लड़की थी, उसकी माँ चल बसी। उसकी देखभाल और मार्गदर्शन के लिए कोई भी नहीं था। उसके पिता ने फिर से शादी कर ली थी। उन दिनों लड़कियों को शिक्षा देने की कोई भी परवाह नहीं करता था, इसलिए वह कभी भी पाठशाला नहीं गई थी। उसकी बहुत कम आयु में शादी कर दी गई थी और बच्चे हो गए थे। बाद में उसके पोते पोतियाँ भी हो गए थे। दादी अपने सभी बच्चों के लिए खाना पकाने और उन्हें खिलाने में बहुत प्रसन्नता अनुभव करती थी। कभी-कभी वह स्कूल न जाने पर पश्चाताप करती थी। उसने सबक सीख लिया था, इसलिए उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके बच्चे और पोते-पोतियाँ अच्छी तरह पढ़ें। जब कथाकार बाहर गई हुई थी तो कर्मवीर आम दिनों की तरह ही आया। उसने पत्रिका खोली। वहाँ जो कुछ लिखा था वह बिल्कुल ही समझ नहीं पाई। उसने स्वयं को पहली बार इतना अधिक आश्रित और असहाय अनुभव किया। दादी ने अगले दिन से ही कन्नड़ की वर्णमाला सीखने का निर्णय लिया। उसने बहुत कठिन परिश्रम करने का फैसला किया। उसने दशहरा के दौरान सरस्वती पूजा के दिन को अंतिम तिथि के रूप में रखा। उस दिन वह अपने आप ही एक उपन्यास को पढ़ पाएगी। वह स्वतंत्र होना चाहती थी। कथाकार को उसके चेहरे पर दृढ़ता का भाव दिखाई दिया। फिर भी वह अपनी दादी के निर्णय पर हंसी। उसने दादी का मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी दादी सिर्फ मुस्कुरा दी और उसने कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन से कथाकार ने अपना शिक्षण प्रारंभ कर दिया। दादी एक अद्भुत विद्यार्थी थी। वह गजब का गृह कार्य करती थी। वह पढ़ती, दोहराती, लिखती और कंठस्थ सुनाती। कथाकार की एकमात्र उसकी शिक्षक थी। दादी उसकी पहली शिष्या थी। दशहरे का त्योहार अपने समय पर आ गया। उपन्यास काशी यात्रे उस समय तक प्रकाशित हो चुका था। कथाकार ने चुपचाप उपन्यास की एक प्रत खरीद ली थी। दादी ने अपनी पोती को पूजा के स्थान पर बुलाया। उसने उसे एक स्टूल पर बिठाया। उसने उसे फ्रॉक का सामान उपहार के तौर पर भेंट किया। फिर दादी ने एक असाधारण काम किया। वह झुकी और उसने अपनी पोती के पैरों को छुआ। कथाकार हतप्रभ रह गई। दादी ने स्पष्टीकरण दिया। उसने उसे बताया कि वह एक पोती की नहीं, अपितु एक शिक्षक के चरणों को छू रही थी। उसने इतने बढ़िया ढंग से शिक्षण दिया कि अब वह किसी भी उपन्यास को विश्वास के साथ पढ़ सकती है, चाहे उसकी आयु या लिंग कुछ भी हो। एक शिक्षक का सम्मान होना चाहिए। फिर उसने उपन्यास खोला और उसके शीर्षक काशी यात्रा को पढ़ा। दादी विशिष्टता के साथ पास हो गई थी।